Hello students, welcome to Empower Education, and this is Neha Sutar, your mathematics teacher. So I hope all of you are safe at your home and all of you are taking care of yourself. Okay, so in last session we have discussed practice set 5.2 of lesson probability standard 10th SSC, and in today's session we are going to discuss the next part, that is practice set 5.3. Okay. सो प्रोबेबिलिटी लेसन का प्रीवियस पार्ट हमने देखा, हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व किए, वी हैव आल्सो डिस्कस सम क्वेश्चंस, एंड नाउ इन दिस सेशन वी विल डिस्कस एग्जांपल्स फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 5.3. यहाँ पे मैंने पार्ट 1 इसलिए लिखा है क्योंकि दो ही क्वेश्चंस जो है इस प्रैक्टिस सेट के हम आज के सेशन में सॉल्व करने वाले, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे अगर क्वेश्चंस ले लिए तो आप भी बोर हो जाते हो, आप भी परेशान हो जाते, इतने सारे क्वेश्चंस एक ही सेशन में आपको देखना थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट लगता है. So some questions we will solve in this session and remaining questions we will solve in the next session. Okay, so let's start for the today's session probability practice set 5.3. Okay, so सबसे पहले हम देखेंगे कि what is event. In previous session we have also seen some definitions and how to solve examples regarding those definitions. So now in this session particularly we will see what is event and also solve examples regarding this event. Okay, so see what is the definition of favorable outcomes. The outcomes satisfying particular condition are called favorable outcomes. So जब भी कभी हम कौन सा भी random experiment लेते हैं and we will write all the possible outcomes for that random experiment, it is called as a sample space. But हम जब particular condition डालते हैं किसी भी experiment में कि हमें यही outcome हमें चाहिए, so such type of condition when we will consider for any random experiment, then the outcomes outcomes will come. So such type of outcomes are called as a favorable outcome. जो हमें outcomes चाहिए वही outcomes अगर हमें चाहिए, so those outcomes are called as a favorable outcomes. Now next part, a set of favorable outcomes of a given sample space is an event. So जब हम all possible outcomes का जब हम set बनाते हैं, so when we will write all possible outcomes for any random experiment in the form of set with the help of comma, so हर एक possibility के बीच में हम comma देते हैं, उसका एक set form करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस. बट व्हेन वी विल राइट सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स, अभी हमने देखा क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स, एंड सॉरी, सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स we will write in the form of set for a given sample space, then it is called as an event. Okay, so this is the definition of event. An event is a subset of a sample space. and क्यों कहा जाता है इसको सबसेट? बिकॉज सैंपल स्पेस में हम सभी आउटकम्स लिखते हैं जो पॉसिबल आने वाले उस एक्सपेरिमेंट के, लेकिन इवेंट में हम लिखते हैं जो हमें आउटकम्स चाहिए वही आउटकम्स और वही इवेंट हम कंसीडर करते हैं, वही कंडीशन हम डालते हैं, तो जो सेट फॉर्म होगा it will be subset of the sample space. So event is a subset of sample space. Now we will see some more points regarding event. See, events generally हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे हमने देखा सैंपल स्पेस हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, एंड इवेंट्स जो हम डिनोट करेंगे मतलब वो भी एक सेट होगा. तो आपको पता है व्हेन वी विल डिनोट एनी सेट वी विल ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर्स. सो इवेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी एक्सेट्रा, मतलब you can use any letter from alphabets. Okay, so but these letters should be capital letters. Okay, so events we will denote by capital letters. Now यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको कैसे लिखना है इवेंट. देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड एंड ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, देन द फेवरेबल आउटकम्स आर एज फॉलोज. सो यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट है कि हमें दो कॉइन्स एट अ टाइम टॉस करने हैं, एंड हमारा इवेंट ये है कि हमें एटलीस्ट एक टेल मिलना चाहिए. मतलब व्हेन वी विल टॉस टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, वी नो फॉर एवरी आउटकम, मतलब जो भी कोई आउटकम आएगा उसमें हमारे पास दो नंबर्स मिलेंगे या दो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल, एक बार आपने टॉस किया आपको हेड हेड मिल सकता है, दूसरी बार टॉस किया आपको हेड भी मिल सकता है, टेल भी मिल सकता है, मतलब एक कॉइन पे हेड दूसरे कॉइन पे टेल, इन दैट वे. सो हमें चाहिए कि दो एटलीस्ट वन टेल होना चाहिए, मतलब दो कॉइन्स हम साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो दोनों में से किसी पे भी, और दोनों में से जो कोई आउटकम्स आएंगे उनमें एक तो टेल रहना ही चाहिए. दो रहेंगे तो भी चलेगा लेकिन एक तो मिनिमम रहना ही चाहिए. So this is what our event. So how we will write the possible outcomes? So initially when we will write set for an event, first we will write the sample space. जितने कोई possible outcomes है वो हम लिखेंगे, that is sample space we will write. Because when we will write the sample space, आप sample space को देख के हम क्या कर सकते हैं, event के
इवेंट, जो कोई इवेंट है उसका जो कोई आंसर है, पॉसिबिलिटीज है, वो हम इमीडिएटली लिख सकते हैं। अगर सैंपल स्पेस आपने नहीं लिखा तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है वो सोच के लिखना, तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे एंड देन वी विल राइट द आउटकम्स फॉर द फेवरेबल आउटकम्स फॉर अवर इवेंट। सो सी, यहाँ पे जो है हमारे पास जब हम दो कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो हमारे पास 4 आउटकम्स आते हैं, 4 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। टेल टेल, हेड हेड, टी एच एंड एच डी। मीन्स टेल आता है कभी पहले, देन दूसरे कॉइन पे एच आ सकता है, पहले कॉइन पे एच आएगा, दूसरे कॉइन पे टी आ सकता है। सो दिस इज अ सैंपल स्पेस। सो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है टी टी, टी एच एंड एच डी। मतलब इनमें से किसी भी आउटकम को अगर आपने देखा तो उसमें एक तो टेल प्रेजेंट है। ओके, सो इवेंट हमने लिखा, कैपिटल लेटर ए का यूज किया, सो 3 आउटकम्स हमें यहाँ पे मिल गए, फेवरेबल आउटकम्स। नाउ वी विल काउंट द नंबर ऑफ आउटकम्स. So the number of elements in the event A is denoted by n of A. तो हमने देखा है कि number of elements हम कैसे डिनोट करते हैं. So number of elements जो है इस particular event के लिए वो है 3. So how we will write it? See here n of A equal to 3. So यहाँ पे 3 favorable outcomes मिले हैं. So हम लिखेंगे n of A equal to 3. जिस लेटर से हम सेट को डिनोट करेंगे, इवेंट को डिनोट करेंगे, तो वही हम यूज करेंगे जब हम एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे. ओके, सो नाउ टाइप्स ऑफ इवेंट्स. तो कौन कौन से टाइप के इवेंट्स आ सकते हैं? सो सबसे पहले है सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट. सो दिस इज अ टाइप ऑफ इवेंट व्हेन फॉर दैट यू कैन श्योरली टेल व्हाट विल बी द आउटकम. फॉर एग्जांपल, इफ यू विल, अभी हमने एग्जांपल देखा जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, सो यू नो आइदर हेड विल कम और टेल विल कम. So this is the, you can tell it with certainty, that is head will come or tail will come. So this is a certain event. So जिस आउटकम के लिए आपको पहले ही पता है कि क्या किस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको पहले ही पता है कि क्या आउटकम आने वाले. सो इवेंट जब आप लेते हो तो उसके लिए भी अगर आपको पता है कि क्या आउटकम आने वाला है, सो सच ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड एज अ सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट. नाउ नेक्स्ट वन, इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है कि जिसके लिए आप को जो है पॉसिबिलिटी और आउटकम मिल ही नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल अगर हमने लिया, इफ यू विल टॉस अ कॉइन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल एट द सेम टाइम, इट इज नॉट पॉसिबल. सो सच टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड एज अ इम्पॉसिबल इवेंट. सैंपल स्पेस आप लिख सकते हो फॉर दैट एक्सपेरिमेंट, फॉर मीन्स टॉसिंग अ कॉइन फॉर वन टाइम. सो सैंपल स्पेस विल बी हेड एंड टेल, एक ही कॉइन हम टॉस करें तो. लेकिन इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल एट द same time, so it is not possible. So such type of events are called as impossible events. Now simple or elementary event, इस इवेंट में क्या होता है कि जो कोई आउटकम होता है उसमें सिंगल एलिमेंट रहता है. सो इसको हम क्या कह सकते हैं? सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल थ्रो अ डाई, so you know what will be the possible outcomes, number 1 2 3 4 5 and 6. लेकिन अगर आपने एक कंडीशन डाल दिया कि इफ यू वांट टू गेट ओनली 2 एज अ आउटकम और फेवरेबल आउटकम, सो जब भी कभी आप जब आप थ्रो करोगे उस डाई को तो आपको नंबर 2 मिलेगा. सो दैट विल बी योर फेवरेबल आउटकम. सो सच टाइप ऑफ इवेंट जहां पे आपको एक ही एलिमेंट मिलता है एज अ आउटकम, सो उसको हम कहेंगे सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट. नाउ नेक्स्ट वन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट. कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है? सपोज अगर हमने डाई को थ्रो किया एंड अवर कंडीशन इज गेटिंग इवन नंबर्स. Okay, even numbers on the face of that die. So even numbers क्या रहते हैं? 2 4 6. And what is the complement of that event then? So numbers 3 5 and 1 are the elements which are odd numbers. So even numbers and odd numbers ये जो है वो ये अगर events हमने ले लिए तो एक दूसरे के हैं complements. Okay, so if you will write the event like probability of getting even numbers, then probability of getting odd numbers will be the complement of an previous event. Okay, so I hope all of you understood this part. Now mutually exclusive events. So ये जो events होते हैं वो disjoint sets हमें मिलते हैं as a outcomes. Means for example, अभी हमने एग्जांपल देखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट के लिए, सो सेम एग्जांपल यहाँ पे भी हम कंसिडर कर सकते हैं. मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स. सो ये जो है इवेंट्स, उनमें जब हम उसके लिए सेट लिखेंगे, सेट फॉर्म करेंगे, तो दोनों में कोई भी नंबर रहे, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी पॉसिबिलिटी है, वो दोनों में सेम नहीं है. सो दीज आर टोटली डिस्जॉइंट सेट्स. सो सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड एज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जॉस्टिव इवेंट. सो व्हाट इज एग्जॉस्टिव इवेंट? सो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए जब हम ऑल
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज मस्ट, मतलब कोई तो एक आउटकम और कोई तो एक इवेंट डेफिनेटली हमें मिल जाएगा. सो सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव इवेंट. सो एग्जॉस्टिव इवेंट्स के लिए हम पॉसिबिलिटीज जो है, सो जो भी कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है वो सबका सेट हम लिख सकते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए, क्योंकि उनमें से एक तो हमें डेफिनेटली एज अ आउटकम मिल जाएगा. ओके, so this is what about type of events. I hope all of you understood this part very well. Okay, now we will start for the practice set 5.3. As I have told earlier, we will only solve first two questions. So see what is the first question. ये first question है, उसमें ही सब 6 questions जो है वो सब questions है. So में से 2 questions आप अब इस session में आज के हम solve करने वाले. So write sample space S and the number of sample points n of S for each of the following experiment. Also write events A, B, C in the set form and write n of A, n of B and n of C. So जो भी कोई एग्जांपल्स आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं, तो दोनों एग्जांपल के हमें क्या लिखना है. सबसे पहले हम लिखेंगे सैंपल स्पेस, देन वी विल राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सैंपल पॉइंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल स्पेस, एंड देन वी विल राइट फॉर ऑल द इवेंट्स A, B, C whatever the event will be given, and we will write set for, we will form a set for all the events given, and also we will write number of elements which are present in all the sets, all the events. Okay, so in this way we will start for the first question. See what is the first question given. One die is rolled. तो एक डाई हमें लेना है. हमें पता है हम लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तब हम डाई यूज करते हैं. तो यहाँ पे इवेंट A है, इवेंट B है एंड इवेंट C है. So for all these three we will write event and we will write number of elements present in the given event. So क्या दिया है देखो, event A even number on the upper face, then event B है odd number on the upper face and event C है prime number on the upper face. तो अभी आपको पता चल गया होगा कि सैंपल स्पेस तो हम लिखेंगे, all possible outcomes हम लिखेंगे, लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन डाल के जब हमने इवेंट्स लिखे हैं तो हमें क्या मिलेंगे, फेवरेबल आउटकम्स. सो फॉर दिस विल नीड दिस पिक्चर और इमेज. तो यहाँ पे मैंने जो कोई डाई हम जब भी हम डाई थ्रो करते तो जो कोई फेसेस हमें दिखेंगे, पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मैंने डाल दिए विद द हेल्प ऑफ पिक्चर. सो नाउ सी सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें लिखना है एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन. सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस लिखना है. सो व्हेन यू विल थ्रो अ डाई यू विल गेट सैंपल स्पेस S is equal to numbers 1 2 3 4 5 6. So you will write the set with the help of curly braces and after every sample point you will give a comma. So ये हो गया सैंपल स्पेस हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए. व्हेन वन डाइस रोल्ड और वन डाइस थ्रोन. नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं सैंपल स्पेस में, 6 सैंपल पॉइंट्स है. सो इवेंट ए पर्टिकुलरली अब हम इवेंट A, B, C कंसीडर करेंगे. सो कंडीशन फॉर इवेंट A इज इवन नंबर ऑन द फेस. तो सैंपल स्पेस लिखने का यही यूज है, यही हेल्प है कि हमें इवेंट लिखने के बाद इमीडिएटली हम उस इवेंट के लिए सेट फॉर्म कर सकते हैं. सो अभी आपके फिगर को बिना देखे भी आप क्या कर सकते हो, सैंपल स्पेस को देख के आप इवेंट के लिए सेट फॉर्म कर सकते हो, बिकॉज वी नो व्हाट आर इवन नंबर्स, व्हाट आर ऑड नंबर्स. ओके, सो पर्टिकुलरली इस इवेंट के लिए वी विल राइट देयरफॉर A, कैपिटल A लेटर हम यूज करेंगे इवेंट डिनोट करने के लिए. सो A इक्वल टू 2 4 6. सो फिगर में भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि कौन से नंबर आ सकते हैं. ओके, सो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक आई थिंक डबल हो गया, सॉरी फॉर दैट. ओके, सो 1 2 3 एंड 4 5 6 इसको आप कंसिडर मत करो. सो यहाँ पे जो है हमें मिल जाता है 2 4 6 एज इवन नंबर्स. सो दिस इज द इवेंट A एंड हमें लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उस इवेंट में हमें कितने फेवरेबल आउटकम्स मिलने वाले, दैट इज 3, बिकॉज डाई थ्रो करने के बाद टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन उनमें से इवन नंबर जब फेस पे आएंगे सो उसकी पॉसिबिलिटी है ओनली 3 नंबर्स. Now we will go to the next event. Okay, just wait. Okay, so now condition B क्या है, condition for event B odd number on the upper face. जैसे हमने even के लिए लिखा, similarly we can write for the odd number on the face. So odd numbers कौन कौन से आ सकते हैं, 1 3 and 5. Okay, so we will write set for event B. So capital B equal to numbers in the curly braces 1 3 and 5. So now how many favorable outcomes we are getting for this event, that is 3. So you will write n of B equal to 3. Now next event C. I hope all of you understood both these events which we have solved now. Now condition for event C. Event C क्या है,
प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। प्राइम नंबर कौन कौन से है? सैंपल स्पेस को जब आप देखोगे टोटल 6 सैंपल पॉइंट्स आर देयर, बट वन नंबर जो है उसमें प्रेजेंट, पहला वाला नंबर, और दैट इज वन नंबर, सो इट इज नाइदर कंपोजिट और इट इज नॉर प्राइम नंबर, मींस वो प्राइम नंबर भी नहीं है वन नंबर, और इट इज कंपोजिट भी नहीं है। सो रिमेनिंग नंबर्स में से हमें सिलेक्ट करने हैं प्राइम नंबर्स। सो व्हाट विल बी दोस नंबर्स? सो दैट इज 2, 3, 5। आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सो जिस नंबर को हम वन नंबर के हेल्प से और उसी नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। ओके, सो कितने पॉसिबिलिटीज हमारे पास है यहाँ पे? फेवरेबल आउटकम्स n of c equal to 3, means number of elements present in the event c, that is 3. Okay, so these are the favorable outcomes. 3 मिल गए. Now we will go to the next question. Okay, 2 dice are rolled simultaneously. 2 dice अगर हमने simultaneously roll किए तो हमें कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स मिलने वाले हैं और इवेंट्स कौन कौन से दिए वो देखते हैं. सो इवेंट ए क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6. सो फर्स्ट इवेंट जो हमें दिया है, तो हमें ऐसे नंबर्स पेयर्स लिखने हैं कि जिसमें हमें जो नंबर मिलने वाला है, तो और जो कोई एवरी सैंपल पॉइंट होगा तो उसमें जो डिजिट्स प्रेजेंट है उनका एडिशन होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 6. हम जब उस इवेंट को पर्टिकुलरली लिखेंगे तब हम ऑल डिटेल में डिस्कस करेंगे. इवेंट बी इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10. मिनिमम 10 होना चाहिए उनका एडिशन, मैक्सिमम 10 से ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा. नाउ इवेंट सी इज द सेम डिजिट ऑन द अपर फेसेस. तब हम ऐसा वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियसली भी देखा है कि सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे जब हम 2 डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे. और सेम आप क्या कर सकते हो, मतलब जो कोई क्वेश्चन दिया है, मतलब 1 डाई अगर आपने 2 बार थ्रो किया तभी आपको सेम ही सैंपल स्पेस मिलने वाला है. ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे? देखो, अब 2 डाइस जब आप साइमल्टेनियसली थ्रो करने वाले हो तो पहले डाई के लिए जो पॉसिबिलिटी है उसको उसके साथ आप लोगे दूसरे डाई पे जो कोई पॉसिबिलिटी आने वाली. तो इसके लिए यहाँ पे जो सैंपल पॉइंट्स होंगे, दो सैंपल पॉइंट्स आर नथिंग बट द ऑर्डर प्लेस. एंड सभी ऑर्डर प्लेस को हम क्या लिखेंगे? करली ब्रेसेस के हेल्प से हम करली ब्रेसेस में वो सारे सैंपल पॉइंट्स लिखेंगे विद हेल्प ऑफ कॉमास. सो देखो, व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस for the given experiment? 2 dice are rolled simultaneously. So यहाँ पे मैंने लिखे है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. सिमिलरली फॉर अगर पहले डाई पे हमें 1 नंबर मिला तो उसके साथ दूसरे डाई पे 1 2 3 4 5 6 ये भी मिल सकता है. सिमिलरली अगर पहले डाई पे आपको 2 नंबर मिल गया तो दूसरा वाला डाई है उस पे भी आपको 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी एक नंबर मिलने वाला है. सो इन दिस वे हमें यहाँ पे इतने जो है सैंपल पॉइंट्स मिल गए तो हमने वो लिख लिए सभी. सो लास्ट 6 अगर मिल गया पहले डाई पे तो उसके साथ हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 विच विल बी द नंबर वी विल गेट ऑन द अनदर डाई. सो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल रहे हैं? सैंपल पॉइंट्स. सो n of s इक्वल टू 36. पहले डाई पे 6, पहले डाई के लिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 6, दूसरे डाई के लिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 6. सो टोटल 6 into 6 दोनों जब आप साइमल्टेनियसली थ्रो करोगे तब आपको 36 सैंपल पॉइंट्स और 36 पॉसिबिलिटीज मिलने वाली है. सो सैंपल स्पेस हमने लिख लिया. नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, दैट इज इवेंट ए, इवेंट बी एंड इवेंट सी. सो नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट फॉर द इवेंट ए. सो यहाँ पे कंडीशन है इवेंट ए के लिए द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6. तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देख के भी आप कर सकते हो, नहीं तो जो कोई सैंपल स्पेस आपने लिखा है तो उस पे जाके भी आप देख सकते हो. मैं थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड पे जाती हूँ फिर से. तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इस सैंपल स्पेस में ऐसे कौन से पेयर्स है कि जिनमें आपको सम जो है, मतलब जो कोई डिजिट्स है उनका सम एडिशन आपको मिलना चाहिए मल्टीपल ऑफ 6. अब मल्टीपल ऑफ 6 मतलब क्या नंबर्स होते हैं? द नंबर्स विच विल बी प्रेजेंट और विच आर प्रेजेंट इन द टेबल ऑफ 6. 6 के मल्टीपल के फॉर्म में जो नंबर है, मतलब 6 के टेबल में जो नंबर है. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 1 5, देन आप लिख सकते हो 2 4, देन आप लिख सकते हो 3 3, देन आप लिख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट 4 2, देन आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 1, देन आप यहाँ पे लिख सकते हो 6 6. सो मल्टीपल ऑफ 6 में जो नंबर्स आने वाले और सम जो है उनका जो कोई पेयर्स में नंबर्स है उन सबका एडिशन आना चाहिए 6. तो सैंपल स्पेस को देख के आप ये लिख सकते हो, नहीं तो आप फिगर को देख के भी आप लिख सकते हो. सो सी हियर आई हैव written set for the event A.
So event A equal to 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 and 6 6. So if you will add or if you will take some of the numbers or some of the digits which are present in every sample point, so that is multiple of 6. ओके सो यहाँ पे 6 6 आ रहा है और यहाँ पे जो है लास्ट वाला सैंपल पॉइंट उसमें एडिशन आ रहा है 12. सो 12 इज प्रेजेंट इन टेबल ऑफ 6. ओके नाउ number of sample points or number of elements present in the set which has formed for the event A, that is 6. Now yes, so now condition B के लिए देखेंगे the sum of the digits on the upper faces is minimum 10. अभी हमने देखा कि 6 जो सम आने वाला है उसके लिए हमने पेयर्स लिख लिया. अब मिनिमम 10 से ज्यादा भी हो गया एडिशन और सम तो भी चल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 आना चाहिए, कम से कम 10 नंबर हमें मिलना चाहिए. सो अगेन आई विल गो टू द प्रीवियस स्लाइड. यहाँ पे ओके सो देखो यहाँ पे हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने, ऐसे पेयर्स फाइंड करने कि जिनमें एडिशन जो है वो मिनिमम 10 आना चाहिए. सो मिनिमम 10 के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 4 5 ये जो लास्ट वाला पेयर है, मतलब ये जो पेयर है प्रेजेंट सैंपल स्पेस में, तो बड़े वाले नंबर है यहाँ पे, मतलब प्रीवियस एज कंपेयर टू द प्रीवियस ऑर्डर पेयर्स. सो 4 5 का एडिशन आता है 9. तो उसके बाद जो कोई सभी जो आने वाले हैं यहाँ पे नंबर्स और मतलब जिनमें जिनमें एडिशन 10 आने वाला है वो हम ले लेंगे. सो यहाँ पे देखो 4 6 है, देन यहाँ पे एडिशन 10 मिनिमम मिल सकता है वो 5 5 है, देन यहाँ पे 6 5 भी हमें मिल सकता है, इसके आगे हमें मिल सकता है यहाँ पे 6 4 एंड देन अगेन 6 5 एंड देन 6 6. So now let's check for the next part. Yes. So यहाँ पे देखो कौन कौन से पेयर्स हम कंसिडर करेंगे. बी इवेंट हम लिखेंगे 4 6 5 5. देखो सब में एडिशन 10 आ रहा है और बस लास्ट का जो सैंपल पॉइंट है उसमें एडिशन आ रहा है 12. सो मिनिमम 10 से वो मिनिमम 10 तो है, मतलब 12 इज ग्रेटर देन 10. सो ये भी हम पेयर यहाँ पे लिख सकते हैं. सो 4 6 5 5 देन 5 6 6 4 6 5 एंड 6 6. सो कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे मिले हैं? हमें यहाँ पे 6 फेवरेबल आउटकम्स मिले. सो n of p that is equal to number of elements present in the sample or present for in the set of event B, that is 6. Now the next last condition है event C. So यहाँ पे condition क्या है? देखो the same digit on both the upper faces. दोनों डाय पे जो है डायस जो है उनमें हमें क्या मिलना चाहिए? सेम नंबर और सेम डिजिट मिलना चाहिए. तो ये तो आप बिना सैंपल स्पेस देखे भी लिख सकते हो, दैट इज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6. सो सी इवेंट के लिए जो हमने सेट फॉर्म किया है, सो दैट विल बी इन दिस फॉर्म. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इवेंट सी के जो हमने सेट लिखा है उसमें? सो n of c इक्वल टू 6. सो आई थिंक इन दिस वे हमने सभी क्वेश्चंस, only 2 first questions we have solved in this session. Okay, so I hope all of you understood both these questions very well. You understood how to write the sample space for given set or for given experiment, and how to write a set for particular event which is given in the example. So in this way we have completed 2 questions from practice set 5.3 probability के. So I hope all of you understood all the questions and आपको आज का मेरा सेशन अच्छा लगा हो. So thanks for watching this video. and अगर आपको ये मेरा आज का सेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करो. और अगर आपके कोई सजेशंस है तो भी आप मुझे क्या कर सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो. सो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, आपके क्वेरीज, आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व करके देखेंगे. तो आज के सेशन में यही रुकते हैं. अगर आपके क्वेरीज है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करो. तो आज के सेशन में यही रुकते हैं एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करो. और आप बोर हो रहे हो तो कुछ नया नया ट्राई करो. पढ़ाई में जो कुछ डिफिकल्ट लगता है तो उसके लिए भी आप क्या करो, सबसे पहले उस कंसेप्ट को रीड करो, उसको समझने की कोशिश करो. अगर आपको कोई भी चीज अच्छे से समझ आ जाए तो उसको सॉल्व करना, उसको अप्लाई करना डेफिनेशन को, और जो कि फॉर्मूलाज उसके अप्लाई करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. तो आज की सेशन में यही रुकते हैं एंड फिर से मैं कहना चाहूंगी, स्टे होम, स्टे सेफ, आपके हेल्थ का ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई भी करो और हैप्पी भी रहो, एंजॉय भी करो आपका जो अगर वेकेशन चालू है. लेकिन पढ़ाई का भी ध्यान रखो, पढ़ाई भी आपकी अच्छे से होनी चाहिए. ओके, तो तब तक बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.